एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। माझी गर्जना शिवसेना, मुंबईची गर्जना शिवसेना, महाराष्ट्राची गर्जना शिवसेना, भारतवर्षाची गर्जना शिवसेना, और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर कोई भी देश के राज्य हों, वहां पर मैं वहां पे मजबूती से काम करूंगी, सशक्त बनाने का काम करूंगी, और पार्टी की जो आइडियाज हैं उसको देश भर में लेकर जाने का कर्तव्य निभाऊंगी। आपके मन में किसी के सवाल कुछ हो, मैं उसका जरूर वन एट अ टाइम। One of the speculations is that you are upset over not being given a ticket in Mumbai by the Congress. How would you respond to that? Actually, that's not true. I can tell you very honestly, yes, I was seeking a ticket. I was hopeful that the party would give me an opportunity to politically represent the party, being the voice of the party for so many years, would have that faith in me to be able to take it to the next level. But there was never a doubt in my mind that if that decision did not have come my way, it will lead to any bitterness. That was never the reason. The reason has always been that when we talk about women empowerment, when we talk about women's safety, when we talk about women's issues, then we have to live by them within your house and outside. And I can just tell you one example. As a woman, if a family member, let's say, sexually assaults you, I'm just giving you an example to understand what a woman feels. You're sexually assaulted inside the house, and you approach your mother and you tell her that something like this has happened by one of the family members. Can you stand up for me? And the mother says, listen, don't talk about it, it will create a controversy. Hush it up now, we will talk about it, we will take decisive action, but let's just move on. So that is when a child who is going to her mother looking for that support, and when that is missing, you feel let down. Let me rephrase this, because I don't want another controversy coming my way. Let me rephrase this. I was only giving you all an example, and there was no way that the party expected me to hush it up. Considering I have gone public and I have expressed my displeasure, but at the same time felt that there is a need to stand up for what I stand for, I have done that. In your resignation letter, Priyanka, you have said that you are hoping that party leadership will take care of your aspirations. Will you share what was your aspirations in that party? No, my apart from ticket. Okay, let me tell you one thing. When I joined the political party, I joined with the total belief in liberal, progressive, young leadership getting a chance to be a part of a political system. And I have also been given whatever. I come with no acrimony. I come with no misgivings. But I come forward with that belief that not just with my aspirations or what I espouse, I need to take it to the next level. इस मामले को लेकर आपने बात की थी, टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से अपनी मैंने मथुरा से टिकट भी नहीं मांगी थी। सबसे पहले पार्टी के बड़े नेताओं से जो आरोप कर रहे हैं, वन सेकेंड, लेट मी हिंदी में ये बताइए क्या टिकट की वजह से अपनी पार्टी को भी जो बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी। मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहाँ से आते हैं, मथुरा में उनका घर भी है, मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा। मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा।
पर मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी। आपने पार्टी के बड़े नेताओं आपने बड़े नेताओं से बातचीत की थी इस पूरे मामले में। आपने कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी कि उनको फिर से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, उसको रोका जाए। मैं यहाँ पर बस ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमांड को बता दिया था, दे वर अवेयर ऑफ। उद्धव सर, और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, उससे जुड़े किया, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी में शामिल हुई, शिवसेना, ये क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप सवाल ये पूछते हैं। हाँ जी, कि शिवसेना के बारे में आपका जो मनोपरिवर्तन हुआ है, वैसा ही मनोपरिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना, मैं मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है, और मैं मानती हूं हर मुंबईकर के दिल में और हर महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में राज करता है वो, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। तो मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी। और मैं आपने जो मुद्दे कहे कि जिन मुद्दों भाजपा को क्यों नहीं चुना आपने, और राष्ट्रीय पार्टी है केंद्र में, उनकी सत्ता, क्योंकि मैंने कहा मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन इतना मुझे हास्यास्पद लग रहा है, और मैं जानती हूँ कि मैं I'll be up for attacks, पर मैं आपको निष्ठा से, सच्चाई से, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं इस पार्टी से आकर जुड़ी हूँ, संगठन से आकर जुड़ी हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और मेरी लेटर में भी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 10 साल में मैंने पार्टी से ना कुछ मांगा, और जो भी जिम्मेदारी दी निष्ठा, सेवा भाव से दी। और मैं ऐसे परिवार से आई हूं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में वास करता है, मथुरा छोड़कर मुंबई को उसने अपना घर बनाया, उनकी कर्म भूमि बनी। और आज अगर मैं कोई सेवा भाव से किसी पार्टी से जुड़ती हूं, तो मैं सेवा की निष्ठा से जुड़ रही हूं, किसी पदवी की निष्ठा से नहीं जुड़ रही हूं। पर क्या मैम सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की? मैम जहां से भी उधर फिर कहेंगे मैं it had gone to the highest levels, and I think मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हे प्रश्न आणि उत्तर हे असे चालू राहतील, हे नेव्हर एंडिंग आहे. मला असं वाटतं मी प्रियंकाजींचं शिवसेनेत स्वागत केलेलंच आहे. त्यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही. एक चांगली बहीण शिवसैनिकांना मिळालेली लढवय्यी आहे आणि आपल्या मताशी ठाम राहणाऱ्या निष्ठा. आणि शेवटी त्या म्हणाल्या की मी मथुरेत इथे आले आणि माझी कर्मभूमी आहे. प्रियंका जी, आपने जो बात कही है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेगी. अजूनही जसं उद्या तुम्ही आता विचारत होता की त्यांना नेमकी काय जबाबदारी देणार, मी नक्कीच त्यांना त्यांच्या पूर्णपणे कुवतीचा, बुद्धिमत्तेचा देशाला आणि शिवसेनेला उपयोग येईल अशा पद्धतीची जबाबदारी त्यांना देईल. आणि म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज काही तुम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा करू नका. आज मी त्यांचं स्वागत करतोय आणि लवकरात लवकर त्यांना अतिशय चांगली जबाबदारी मी देणार. की बात उठाई थी, शिवसेना ने हमेशा साथी प्रज्ञा की बात उठाई थी,
टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर काफी ठीक है, पहले आज ये मुद्दा ये बातें लोगों के सामने जाने शाम को भी मेरी मीटिंग है, कल भी है, परसों भी है, हम बात करेंगे। हेमंत करकरे को लेके सर, हेमंत करकरे को लेके काय कर्मों की सजा एक मिनिट ह्या विषयावरती बोलणारे पण त्यांनी आत्ता बोलत नाहीये. आत्ता मला ही जी आपली बातमी आहे ही पहिली बातमी जाऊ द्या, त्याच्यानंतर साध्वी असतील, करकरे असतील, या विषयावरती मी या आदित्य Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.